Good morning, student. Today we will discuss next part of function. Today's part is value of the function. Okay? So we will continue value of the function. Value of function, in the value of the function, there are many type of questions comes like that. First question is, if fx equal 1 minus x upon 1 plus x, then find f of 2x in terms of fx. In terms of fx. Okay. It is given that if fx is 1 minus x upon 1 plus x, we want to find the f2x in terms of fx. Okay. Let y equal 1 minus x upon 1 plus x. So here is y, it is fx equal y. So y plus xy equal 1 minus x. So it is written as x, y plus x equal 1 minus y. So x is 1 minus y upon 1 plus y. Okay. Now we want to find the value of f of 2x. If fx is 1 minus x upon 1 plus x, so f of 2x is 1 minus 2x upon 1 plus 2x. And f of 2x, we want to find this in terms of y, that is fx, that means value of x is, so here is 1 minus 2 into 1 minus y upon 1 plus y upon 1 plus 2 into 1 minus y upon 1 plus y. Okay. So this is f of 2x is equals to what? So 1 plus y minus 2 plus 2y upon 1 plus y plus 2 minus 2y. So f of 2x is equals to what? F of 2x, it is 1 minus 3y minus 1 upon 3 minus y. And f of 2x, and what is y? That is fx. 3 of fx minus 1 and 3 minus fx. That is f of 2x is terms of fx. I think it is clear now. If it is given that f of x plus ay and x minus ay equal axy, then find f of xy. Okay. If it is given and then we want to find the value of f of xy. Okay. Let x plus y ay equal lambda and x minus ay equal mu. So adding these two, 2x is lambda plus mu and x is lambda plus mu by 2. If we subtract, then 2ay equal lambda minus mu. So y equal lambda minus mu upon 2a. It is value of x and it is value of y. We put x plus ay equal lambda. So it is lambda and it is mu equal a. What is the value of x in terms of lambda plus mu? By 2, and y is lambda minus mu by 2a. This a and this a gone. So f of lambda and mu is equals to what? Lambda square minus mu square by 4. Lambda square minus mu square equal by 4. That means f of x and y equal what? X square minus y square by 4. This is your answer. I think it's a very easy question. You can easily find. If fx equal cos of log x. Okay, fx is cos of log x. Then we want to find the value of f of xy plus f of x by y. In terms of fx plus fy, fx minus fy, and
in terms of fx and fi. Okay, we want to find the value of this in terms of fx and fi. मैंने कहा yes. First tell me what is fxy. It is cos of log of xy. So it is written as cos of log of x plus log of y. Okay. And what about the f of x by y? It is cos of log of x by y. So it is written as cos of log of x minus log of y. Okay, we want to find the value of sum of these two. मैंने कहा yes, we want to find the value of sum of these two. Okay, so add these two. Cos of log x plus log of y plus cos of log of x minus log of y. Cos c plus cos d, formula of this, f of xy plus f of x by y. Cos c plus cos d, you know that what is the formula of cos c plus cos d? Formula of cos c plus cos d is 2 cos c plus d by 2 and cos c minus d by 2. Okay. Cos of c plus d by 2 and cos of c minus d. Apply this formula here. 2 cos this plus this log of x plus log of y plus log of x plus log minus log of y by 2. Okay. And cos c minus d, that is log of x plus log of y minus log of x plus log of y by 2. This log y and this log y gone, this log x and this log x gone. So f of x plus y is f of xy plus f of x by y is equals to what? That is 2 cos of log x, 2 log x by 2, that is 2 cos of log x and cos of log y, 2 log y, log y. So this is written as 2 of fx and it is fy. That means f of xy plus f of x by y is equals to what? Twice of fx into fy. Very simple question, you can easily solve this question. Okay. We want to find the value of f pi and f pi by 2. Okay. Our interest in finding the value of f pi and f pi by 2. मैंने कहा yes, we want to find the value of f pi and f pi by 2. What is the value of pi? That is 3.14. Okay. And pi square, it is between 9 and 10. Okay. It is between 9 and 10. Okay. So fx is what? Greatest integer 9 to 10, that is 9x. Plus greatest integer minus pi square. Minus pi square is between minus 10 to minus 9. Minus 10 to minus 9 means greatest integer is minus 10 into x. So fx is written as cos of 9x plus cos of 10x. Okay. Now we want to find the value of f pi by 2. Okay, we want to find the value of cos pi by f pi by 2, that is cos 9 by 2, 9 pi by 2 plus cos of 10 into pi by 2. That is f pi by 2 is cos 4 pi plus pi by 2. And this is 10, that is cos of 4 pi plus pi, that is 5 pi. You can remove this, so f pi by 2 is cos pi by 2 plus cos pi
What is the value of cos pi by 2? That is 0. And what is the value of cos pi? That is minus 1. So f pi by 2 is equals to what? Minus 1. This is our answer. Now the next value of this f pi, we want to find the value of f pi. Okay, f pi. Put the value of x here, cos of 9 pi plus cos of 10 pi. Okay, cos 9 pi plus cos 10 pi. Value of cos 9 pi is minus 1 and value of cos 2 pi is 1, so it is 0. That means f pi is equals to 0. This is our solution. I think it is clear. It is given that fx plus f of 1 minus x is equals to 2. Okay, fx plus f of 1 minus x is equals to 2. मैंने कहा yes, fx plus f1 minus x is 2. So here the sum of these two is equals to 1. So if we add this and this, we get 1. Okay, so we can write f 2013 question mark first plus f 2012 upon 2013. Next, f 2013 plus f 2011 upon 2013. Next, f 3 upon 2013 plus f 2010 upon 2013. This way you can find. Okay. If we can write this f1 upon 2013 plus f1 minus 1 upon 2013. f1 upon 2013 plus f1 minus 1 upon 2013. And this is written as f2 upon 2013 plus f1 minus 2 upon 2013. Okay, and this is f3 upon 2013 plus f2 upon 1 minus 3 upon 2013. This way. So tell me, this is 2, this is 2, this is 2. Tell me how many pairs? Okay, how many pairs? Okay, how many pairs? There are how many pairs which have value is equals to 2? Okay, so if this pair is 2, this is also 2, this is also 2, and this is 2 plus 2. 2012, 1 to 2012 means there are 1 to 2012. So total number of pairs are, total number of pair means it is total number of pair into 2. It is your answer. Total number of pair is 2012, that is 1006. 1006 into 1006 into 2, that is 2012 is your answer. The same way you can find this. Tell me what is the answer of this? That means one pair, this and this is a pair. Its value, sum of these value is 1. So how many pair? Here is 1996. So divide by 2. 1996 divide by 2, that is 9, and 19, that is 9, and 16, 998. In this case, there are 998 pairs, and one pair's value is 2. So into 2. So your answer is 998 into 2, that is 1996. I think it is clear now. देखो ये क्वेश्चन है fx is 9 power x upon 9 power x plus 3 and we want to find the value of this. Okay, बेटा देखो 1 to 1995 means it is how many numbers? That is 1995. It is odd number.
or even number, it is even number, odd number. Okay, if we divide by 2, then there is some remainder. That means there are pairs and one numbers is rest. Okay, अपन ने कहा बेटा क्या कि कह रहा है कि बेटा ये 2 से डिवाइड करें, तो ये तो पिछले प्रीवियस क्वेश्चंस में क्या था, यहाँ इवन नंबर था, तो उससे 2 से डिवाइड करके अपना नंबर ऑफ पेयर्स देख लेते. बट अब ये क्या कह रहा है कि यहाँ पे ऑड नंबर दे दिया. उसने कहा यस इट इज ऑड नंबर. मैंने कहा हाँ भैया ये ऑड नंबर है. ओके, ये ऑड नंबर है, दैट मीन्स पेयर इसके बनेंगे क्या, नंबर ऑफ पेयर्स. तुमने कहा नंबर ऑफ पेयर्स बचेंगे और एक रेस्ट बच जाएगा. ओके, अपन इसको देखते हैं. पहले अपन fx प्लस f ऑफ 1 माइनस एक्स फाइन करके देखते हैं. बेटा ये केस ऐसा है क्योंकि इसको और इसको ऐड करें तो 1 आ रहा है. तुमने कहा इसलिए मैंने fx प्लस f 1 माइनस एक्स ऐड करके देखा. तो तुमने कहा बेटा ये कितना, तुमने कहा बेटा 9 पावर x अपॉन 9 पावर x प्लस 3 प्लस 9 पावर 1 माइनस एक्स अपॉन 9 पावर 1 माइनस एक्स प्लस 3. सो इट इज रिटन एज 9 पावर x अपॉन 9 पावर x प्लस 3 प्लस 9 upon 9 power x upon 9 upon 9 power x plus 3. So it is 9 power x upon 9 power x plus 3 plus 9 power x is gone and this is 3 is common. So 3 upon 9 power x plus 3 and it is equals to 9 power x plus 3 upon 9 power x plus 3. It is equals to 1. Okay, that means in the same case fx plus f of 1 minus x is equals to 1. Now we want to find the value of this. So it is f 1 on 996 plus f 995 upon 1996. Next plus f 2 upon 1996 plus f 1994 upon 1996 this way plus mid case कितना होगा mid का केस f 12996 1996 को 2 से डिवाइड करें बेटा 1997 को तो अपन डिवाइड करें बेटा तो 996 तो 9f998 अपॉन 1996 प्लस f 199999 अपॉन 1996 ऐसे चलता जाएगा बेटा. तुमने कहा अच्छा बेटा इसको डिवाइड करें तो ये कितना. अब देखो ये स्पेयर की वैल्यू 1, इसकी पेयर की वैल्यू 1. अब मीन टोटल पेयर कितने हैं. तुमने कहा बेटा टोटल पेयर, मैंने कहा बेटा टोटल पेयर. तो बेटा टोटल पेयर, टोटल नंबर ऑफ पेयर्स मीन्स इसका आंसर क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ पेयर. और एक पेयर की वैल्यू कितनी, तुमने कहा एक पेयर की वैल्यू बेटा fx प्लस f1 माइनस एक्स की वैल्यू 1 है तो इंटू वन वैल्यू ऑफ पेयर प्लस एक मिड वाली सिचुएशन बढ़ गई. तुमने कहा अच्छा मिड वाली कौन सी, मैंने कहा मिड वाली बच गई बेटा ये वाली 9981996 दैट इज f हाफ. मिड वाला मीन्स अगर अपन बात करें बेटा कि जैसे 1 से लेकर 995 तक है तो 1 से लेकर 995 है तो 1 995 के साथ कनेक्ट हो जाएगा. और बीच वाला जो बेटा 997 है 997 है बिटवीन वाला ऐसे ये बेटा अपने पास इस तरह से f 997 अपॉन 1996 बेटा ये. अब ये बीच वाला पेयर इन दोनों के बीच में एक आएगा 98 ये वाला. तुमने कहा अच्छा तो ये टोटल कितने पेयर हो गए, तुमने कहा बेटा टोटल पेयर तो हमारे पास हो गए 997. ओके तो ये 997 टोटल पेयर है इनटू 1. तुमने कहा देखो टोटल 1995 थे उसको डिवाइड किया तो बेटा तुमने कहा 1995 को डिवाइड किया तो बेटा 997.5. तुमने कहा अच्छा बीच एक रह गया बेटा इनटू प्लस
बीच वाला वैल्यू कौन है, f 998 अपॉन 996, दैट इज 1/2, और 1/2 fx ये है, तो f 1/2 कितना होगा, तुमने कहा बेटा 9 की पावर 1/2 अपॉन 9 की पावर 1/2 प्लस 3, दैट इज आंसर इज 997 प्लस 3 अपॉन 6, दिस इज गॉन 1/2, that is 997.5. This is your solution. So value of this is equals to what, 997.5. I think it is clear now. बेटा बच्चों जैसी बात है, कुछ भी नहीं करना, मिड वाली सिचुएशन की वैल्यू देख लेना, और टोटल बेटा मान लीजिए 5 है बेटा, तो अब देखो 1 किसके साथ, 5 के साथ, 2 किसके साथ, 4 के साथ, तो बीच वाला कौन बचा, 3 बचा। तो सेम बेटा मैंने क्या किया बेटा, मुझे बीच वाला सिचुएशन चाहिए था, तो मैंने कहा बेटा अच्छा 1 किसके साथ, हमारे पास ऐसे सोचना है इसको इस तरह से बेटा, मैंने कहा 1 2 3 4 और 5, तुमने कहा अच्छा 1 2 3 4 5, अब बेटा ये और ये पेयर बना रहे हैं, ये और ये पेयर नहीं बनाना, तो बीच वाला रह गया, तुमने हाँ यार बीच वाला रह गया, तो बीच वाला कौन सा होगा, तो आप लोगों ने देखा बेटा 1 से लेकर 1995 तक का, तो मिड वाली सिचुएशन बेटा 997 इधर चले गए और 997 उधर चले गए, और बीच वाला कौन रह गया 998, तुमने कहा अच्छा बेटा इधर 2 चले गए, 2 जैसे अपने 5 को डिवाइड करें 2 से, तो बेटा 2 पॉइंट समथिंग, तो 2 इधर रह गए, 2 इधर रह गए, बीच वाला कौन सा हो गया, 3rd हो गया। जैसे मैंने 2 से डिवाइड किया इसको, 1995 को 2 से डिवाइड किया, 2 से डिवाइड किया तो क्या है 997 रह गए, तो मतलब 997 इधर नंबर है, 997 इधर नंबर है, और बीच वाला कौन है 998। अब वो बीच वाले की वैल्यू मैंने फाइंड कर ली, दैट इज हाफ, और हमारे पास आंसर आ गया। आई थिंक इट इज क्लियर नाउ। चलिए बेटा हम नया क्वेश्चन हमारे पास है, उसने कहा बेटा कि इफ ए एफ एक्स प्लस बी एफ 1/x इक्वल x minus 5, then find fx. अच्छा a f x plus b f 1/x is equals to x minus 5 है, तो मुझे fx फाइंड करना, तो ना बिल्कुल फाइंड करते हैं fx। कैसे बेटा, देखो इस तरह से अपन इसको ऐसे देखें बेटा, अपन ने इसको ऐसे कहा AFX प्लस बी एफ 1/x, ओके। अब मैंने कहा बेटा मैं x की जगह इसमें 1/x रख देता हूं, तो ये कितना हो गया AFX प्लस बी एफ 1/x इक्वल 1/x माइनस 5। बेटा हमारे पास ये आ गया BFX प्लस AF 1/x इक्वल 1/x माइनस 5। बेटा मुझको क्या रिक्वायर्ड है, fx रिक्वायर्ड है, तो मैं रिमूव इसको करता हूं। अच्छा इसको रिमूव करते हो, यहाँ AFX है और यहाँ B है बेटा, तो इसको A से मल्टीप्लाई करो और इसको B से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो B² FX प्लस AB F 1/x प्लस इक्वल B/x माइनस 5B। तुमने कहा अच्छा B से मल्टीप्लाई किया बेटा इसको, और इसको किससे मल्टीप्लाई करें A से, तो A² FX प्लस AB F 1/x इक्वल AX माइनस 5 है। तुमने कहा यस बेटा, सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस 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 प्लस, ये गया बेटा। तुमने कहा अच्छा कौन जा रहा है, ये जा रहा है बेटा, जाने दो इसको, ये कैंसिल हो गया, और यहाँ पे क्या बना बेटा, तो B² माइनस A² FX इक्वल कितना, तुमने कहा बेटा B/x माइनस AX और प्लस 5A माइनस B। तुमने कहा अच्छा 5A माइनस B, मैंने कहा यस 5A माइनस B। बेटा मैं fx को ऐसे कह दूं बेटा, fx इक्वल व्हाट, तुमने कहा बेटा ये x B² माइनस A², तुमने कहा यस, और बेटा ये कितना B माइनस AX² प्लस 5 या माइनस 5B माइनस A अपॉन B² माइनस A² को मैं ऐसे कह दूं B माइनस A B प्लस A। बेटा ये B माइनस A B प्लस A कैंसिल हो गया, तो हमारे पास fx कितना आ गया, तुमने कहा B माइनस AX² अपॉन x B² माइनस A² माइनस 5 अपॉन A प्लस B। आई थिंक दिस इज इट क्लियर नाउ। बहुत सिंपल है, आराम से हम ऐसे क्वेश्चन को डील कर सकते हैं।
बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है 2f(x) प्लस f 2 माइनस x इक्वल एक्स स्क्वायर। तो मुझे fx फाइंड करना है और f4 भी फाइंड करना। अच्छा f4 भी फाइंड करना, मैंने कहा हाँ बेटा f4। तुमने कहा बेटा सिंपल है, बच्चों जैसी बात है। मैंने कहा यस बेटा, fx 2fx प्लस f ऑफ 2 माइनस एक्स इज एक्स स्क्वायर। बेटा इसमें मैं x की जगह क्या रख दूं, 2 माइनस एक्स रख देता हूं। तो ये कितना हो गया 2f 2 माइनस एक्स और प्लस f 2 माइनस एक्स की जगह 2 माइनस एक्स रखा इक्वल 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। सिंपल, कुछ भी नहीं किया बेटा। तुमने कहा यस, तो बेटा 2 माइनस 2x, तो ये fx प्लस 2 ऑफ f ऑफ 2 माइनस एक्स इक्वल 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ओके, ये बेटा मेरे। अब मुझे बेटा क्या चाहिए, fx चाहिए। ओके fx चाहिए। मैंने कहा हाँ बेटा, तो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2 नहीं है, तो बेटा मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूँ, 2 से। तो ये कितना 4fx प्लस 2f 2 माइनस एक्स इक्वल, तुमने कहा इक्वल, मैंने कहा हाँ बेटा, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया 4fx, ये 2f इक्वल 2x स्क्वायर। तुमने कहा यस। बच्चों ऐसी बात बेटा, सब्ट्रैक्ट करें दिस दिस और दिस, ये तो गया बेटा। तो हमारे पास क्या बचा, fx माइनस 4fx माइनस 3fx, कोई इशू नहीं, इक्वल कितना बेटा, तुमने कहा 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर। ओके, तो fx इक्वल कितना बेटा, तुमने कहा बेटा 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 अपॉन 3, माइनस कॉमन लेके बेटा डिवाइड करते हैं। तुमने कहा अच्छा अच्छा, तो fx कितना, तुमने कहा fx, मैंने कहा बेटा 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर गया तो x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4 बाई 3, और हमें किसकी रिक्वायर्ड है बेटा, f4 की। ओके 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 माइनस 4 बाई 3, दैट इज 32 28 बाई 3 इज योर सॉल्यूशन। आई थिंक इट इज क्लियर नाउ। अब बेटा देखो ये क्वेश्चन दिया है मुझे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तुमने कहा अच्छा इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, मैंने कहा यस, इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आराम से डील कर सकते हैं। तुमने कहा कैसे, मैंने कहा बेटा देखो मुझे तो f11 चाहिए। मैंने कहा बेटा x की जगह 11 रखो, कोई टेंशन ही नहीं, रिलैक्स। तुमने कहा यस, तो 3f11 प्लस ट्वाइस f11 प्लस 59 बाई 11 माइनस 1 इक्वल 10 इंटू 11 प्लस 30, दैट इज 3f11 प्लस 2f11 प्लस 15 70, f7 इक्वल कितना 140। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। बेटा मुझे 11 रखा तो ये आया, तो इसके पेयर में 7 आया, तो अब की बार मैं x की जगह क्या रखूंगा, 7 रखूंगा। मैंने कहा ठीक है बेटा 7 रखते हैं। 7 रखेंगे तो ये कितना 3f7 प्लस 2f, और यहां से बेटा एक 7 रखें तो 7 प्लस 59 दैट इज 66, 60f11 हो गया। ओके इक्वल कितना बेटा, x की जगह 7 रखा तो 100 बेटा। इक्वेशन नंबर 2। हमें किसकी याद आ रही है, तुमने कहा बेटा हमें याद आ रही है f11 की, तो बेटा ये जाना चाहिए। तो मैंने कहा इसको तो 3 से मल्टीप्लाई करते और इसको 2 से। ओके इसको 3 से मल्टीप्लाई करें तो कितना 9f11 प्लस 6f7 इक्वल 14 3 420। ओके, और इसको किससे मल्टीप्लाई करें, तुमने कहा 2 से, 2 2 4f11 प्लस 6f7 इक्वल 200 बेटा। तुमने कहा यस। अब बेटा सब्ट्रैक्ट कर दो लीनियर इक्वेशन से। तुमने कहा जले जा रहे बेटा, ये कितना 5f11। ओके अब बेटा 420 में से 200 गया तो 220, सो f11 कितना हो गया, तुमने कहा 220 बाई 5, दैट इज f11 इज इक्वल्स टू 5 4 20, दैट इज 44 आंसर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आराम से डील कर सकते हैं।
बेटा अगला क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स प्लस 1 एक्स इक्वल एफ स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर है। मुझको एफ एक्स चाहिए। ऐसे क्वेश्चन आए तो तुम कहना दो कौड़ी के हैं। तुमने कहा अच्छा, वेरी सिंपल क्वेश्चन। तुमने कहा अच्छा बेटा इसको अपन ऐसा कहें एफ एक्स प्लस 1 एक्स। अपन क्या करें कि इसी को इसको इस फॉर्म में बना दे। बेटा मैं इसको ऐसे कह दूं एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2 सब्ट्रैक्ट कर दो। सो इफ इज एफ ऑफ एक्स प्लस 1 एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 एक्स होल स्क्वायर माइनस 2। अगर मैंने इसको टी लेट किया तो एफ टी तो कितना बेटा? तुमने कहा एफ टी इज टी स्क्वायर माइनस 2। सो एफ एक्स इज एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज योर आंसर। बस देख लेना है कहाँ पे डिफाइंड है कहाँ पे डिफाइंड नहीं है, वो आपका लो काम है, बहुत इजी है। नेक्स्ट हेडिंग है बेटा अपनी स्टैंडर्ड फंक्शन। तुमने कहा अच्छा स्टैंडर्ड फंक्शन, ये स्टैंडर्ड फंक्शन इसमें पहला बात है बेटा, पहला स्टैंडर्ड में ही आता है एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल एफ एक्स इंटू एफ वाई, एफ एक्स इंटू एफ वाई, और एफ ऑफ एक्स माइनस वाई इक्वल एफ एक्स अपॉन एफ वाई। बेटा ये सीन आ जाए। तुमने कहा अच्छा ये सीन आ जाए, मैंने कहा तो बेटा ये जो प्रॉपर्टी है दिस प्रॉपर्टी इज फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन। बेटा ओके, तो अपने को लेट कर लेना है एफ एक्स इक्वल ए पावर के एक्स। सो लेट एफ एक्स इक्वल ए पावर के एक्स। दिस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, सो यू कैन लेट द फंक्शन इज दिस। ओके, इफ क्वेश्चन इज लाइक दैट, if f of x plus y equal fx into fy, question is if f of x plus y equal fx into fy and f1 equal to, it is given that f1 is equals to 2, then find value of summation k equal 1 to n f a plus k. Okay, we want to find the value of this. मैंने कहा बेटा हमें इसकी वैल्यू रिक्वायर्ड है। ओके, एफ ए प्लस के। तुमने कहा यार एफ ए प्लस के, एफ इक्वल ए प्लस के, क्या वैल्यू क्या है? मैंने कहा बेटा अपने को एक बात समझ में आ रही है, क्लियर विजन समझ में आ रहा है। या अपने ऐसे सोचे बेटा, ये जेई में क्वेश्चन आया था। जेई में क्वेश्चन क्या था? इफ एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज एफ एक्स इंटू एफ आई, एफ वन इक्वल टू एंड एफ ऑफ ए प्लस के इक्वल 16 2 पावर n माइनस 1, देन फाइंड ए। ये बेटा ए फाइंड करना। तुमने कहा अच्छा ए फाइंड करना, मैंने कहा हाँ बेटा। अब देखो ये बहुत ही सिंपल, वेरी सिंपल क्वेश्चन है। कैसे? अब ये प्रॉपर्टी किसकी है? तुमने कहा एक्सपोनेंशियल फंक्शन की, तो अपन लेट कर लेते इस तरह से सॉल्यूशन, लेट एफ एक्स इक्वल ए पावर के एक्स। ओके, एक्सपोनेंशियल फंक्शन मान लिया मैंने ए। इस ए और उस ए में कंफ्यूज मत होना, बहुत सिंपल, अलग अलग है ये बिना केस। F1 कितना दिया? उसने कहा 2। ओके, इट इज ए पावर के। F1 इक्वल 2 इक्वल ए पावर के। अब मेरी बात सुनना बेटा, देर बढ़िया से सुनना। मेरे को fx इक्वल कितना हो जाएगा? तुमने कहा ए पावर के इंटू एक्स कह दूं मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, के एक्स में वापस के एक्स हो जाएगा। और ए पावर के कितना है? तुमने कहा 2 पावर एक्स। ओके, 2 पावर एक्स, ये fx आ गया मेरे पास। अब ये गिवन है बेटा समेशन k इक्वल 1 टू n f ऑफ a प्लस के।
तुमने कहा इसकी वैल्यू फाइंड करना, बाद में इसके साथ कंपेयर करूंगा, एफ ऑफ ए प्लस के। बेटा के एफ ऑफ ए प्लस के इट इज रिटन एज समेशन के इक्वल 1 to n, fx is this, then 2 power a plus k. So it is written as 2 power a summation k equal 1 to n 2 power k. It is written as 2 power a 2 power k, but summation is applied on the k, so we can take common from these two, that is 2 power a this is. Now summation of k equal 1 to n f of a plus k is what? It is 2 power a, and this is k equal 1, that is 2 plus 2 power 2 plus 2 power 3 plus up to 2 power n. K is from 1 to n. It is infinite, sorry, it is a GP. Okay, it is GP. मैंने कहा बेटा it is GP, and sum of n terms of GP is a r power n minus 1 upon r minus 1. तुमने कहा yes, ये तो हमारे GP का फार्मूला होता है। ओके बेटा, सो समेशन k equal 1 to n f of a plus k is equal to what? 2 power a. First term is, you say 2. First term is 2, and r is, means r is 2. 2 power n minus 1 upon 2 minus 1. That is written as 2 power a plus 1 into 2 power n minus 1. And it is given that what? 16 2 power n minus 1 equal 2 power a plus 1 into 2 power n minus 1. This is cancelled. So 2 power a plus k, a plus 1 is written as 16. 16 is written as 2 power 4. Base is same, so a plus 1 is 4, so a is equals to 3. This is your answer. Very simple question. This question asked in JEE exam. I think it is clear now. But next आए, अगर ऐसा सीन है f of x plus y, next case, case 2, f of x plus y equal fx plus fy, या फिर ऐसे आए f of x minus y equal fx minus fy. ओके, तो श्योर है लेट करना है fx इक्वल kx, ये बेटा हमारा सीन आएगा। तुमने कहा ऐसा, मैंने कहा हाँ। कब? जब ये वाला प्रॉपर्टी यूज हो रहा हो। तुमने कहा अच्छा, अगर बेटा ऐसा हो, तीसरा केस, इफ f ऑफ x इक्वल f ऑफ y इक्वल f ऑफ x प्लस y इक्वल f ऑफ x माइनस वाई, सब इक्वल हो बेटा। तुमने कहा बेटा ये इसी केस में हो सकता है जब एफ एक्स इक्वल कॉन्स्टेंट दैट इज इक्वल्स टू के। अगर बेटा ये सारे इक्वल है तो मुझे श्योर है कि ये कांस्टेंट फंक्शन होगा। तुमने कहा यस बेटा। और अगर बेटा चौथा केस है, फोर्थ केस है, अगर वो ऐसा सीन हो बेटा, कैसे? एफ एक्स इंटू वाई इक्वल एफ एक्स प्लस एफ वाई, या फिर ऐसे एफ एक्स बाई वाई इक्वल एफ एक्स माइनस एफ वाई। तो बेटा लेट करना है आपको एफ एक्स इक्वल के लॉग एक्स, बेस कुछ भी रख लेना, मैंने ई मान लेता हूं, के लॉग ई एक्स। जनरली इन पे बेस क्वेश्चन आते हैं बेटा। और एक ऐसा भी सीन है, इसको मैं क्वेश्चन बनाता हूं फिर आगे चलता हूं बेटा। मैं इफ क्वेश्चन ऐसा, इफ एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई, f1 कितना है? 7 है। समेशन r इक्वल 1 to n एफ आर।
अब बेटा क्वेश्चन ये है, इफ एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल एफ एक्स प्लस एफ वाई, एफ वन इज 7, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ समेशन आर इक्वल 1 to n एफ आर। तुमने कहा अच्छा। अब बेटा देखो मेरी बात सुनना, f1 7 दे रखा, उसने कहा यस, एफ एक्स इक्वल वॉट, तुमने कहा ये तो लीनियर इक्वेशंस kx फॉर्म का इक्वेशन है। तुमने कहा अच्छा, f1 कितना, तुमने कहा बेटा k into 1, it is given that 7, that means k equal 7, that means fx equal कितना हो गया, तुमने कहा 7x, fx 7x हो गया। अच्छा fx 7x, मैंने कहा हाँ बेटा, तो समेसन r equal 1 to n fr कितना हो गया, तुमने कहा समेशन r equal 1 to n fr, that is 7r, and it is written as 7 summation r equal 1 to n r, and we know that this is 1 plus 2 plus 3 up to n, means it is sum of n terms, means 7 into n by 2 n plus 1. This is your solution. बेटा क्वेश्चन एक नेक्स्ट एक और केस आता है, इफ fx is a polynomial function, okay, fx is a polynomial function, मैंने कहा yes, fx is a polynomial function in such a way that fx into f 1 by x equal fx plus f 1 by x। बेटा ऐसा सीन हो, प्रोडक्ट और ये इसका सम इक्वल हो, तो बेटा आप लेट करना fx इक्वल प्लस माइनस x पावर n प्लस 1, ये फंक्शन होगा। तुमने कहा अच्छा ये है, याद रखना बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन है, लेकिन यहां पे ये कंडीशन है फिक्स है, पॉलिनोमियल फंक्शन की बात करें तो, अगर आज किसी और फंक्शन के बारे में बात करें तो कहेंगे नहीं, पॉलिनोमियल फंक्शन हो तो ऐसा होता है। तुमने कहा ये, अब बेटा क्वेश्चन ऐसा आ गया, उसने कहा इफ fx इज a polynomial function in such a way that fx into f1 by x equal fx plus f1 by x, fx into f1 by x is fx plus f1 by x, and f2 equal 9, and then find f4। तुमने कहा अच्छा बेटा, अब देखो इसको क्वेश्चन को देखो ध्यान से समझो, बढ़िया बच्चों की तरह बात सुनने बेटा। तुमने कहा यस, it is given that it is polynomial function and property is like this, that means fx को अपन क्या लेट करें बेटा, तुमने कहा प्लस माइनस x पावर n प्लस 1, बेटा f2 दे रखा है, f2 it is equals to 9, that is plus minus 2 power n plus 1, so 2 power plus minus 2 power n equal कितना 8, so 2 power n, take positive sign, 2 power n is 2 power 3, that is n equal 3, ये बेटा n3 आ गया। तुमने कहा अच्छा n3, मैंने कहा हाँ बेटा n3। now the function is fx is plus minus, no only plus 2 x power n, x power 3 plus 1। तुमने कहा अच्छा x पावर 3 प्लस 1 आ गया, मैंने कहा यस। अब बेटा मुझको किसकी वैल्यू रिक्वायर्ड है, f4 की, ओके, सो 4 पावर 3 प्लस 1, 4 पावर 3 कितना 64 प्लस 1 दैट इज 65, ये हमारा आंसर आ गया।
आई थिंक इट इज क्लियर नाउ. नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया उसने कहा एफ एक्स बाई वाई इक्वल एफ एक्स माइनस एफ वाई एंड एफ ई इक्वल 1, देन फाइंड एफ एक्स. बेटा ये प्रॉपर्टी किसकी है? m upon n is log m upon n is log m minus log n, means fx equal k of log e x, एक्सपोनेंशियल x लाइट कर दिया. बेटा f1 कितना है? तुमने कहा k log e बेस 1 इक्वल, तुमने कहा अच्छा fe कह रहा हूं बेटा, fe here is e, f k log e base e, it is equals to what? 1. okay, fe is 1, मैंने कहा ऐसा, that means k into 1 is 1, that means k is equals to 1. so function is 1 into log e x, that is fx is log x. ये हमारा आंसर है. I think it is clear now.